Jai Hind to all. In this slide of class 9th, we are going to study the next topic and we will conclude the page number 62, 63 and 64. In the previous slide, we have read न्यूक्लियस. इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को. जैसा कि ऑल ऑफ यू नो डैट सेल यूनिट इज गोइंग, द चैप्टर नंबर 5 chapter name is cell is going on, and one by one I am preparing the slide. In this slide we are going to discuss the topic cytoplasm, cell organelles and endoplasmic reticulum. It is an example of cell organelles. We have to read many organelles others also, but in this slide we will discuss only endoplasmic reticulum. Then come one by one we will know what is cytoplasm, cell organelles and endoplasmic reticulum. At the beginning of the chapter I have given you introduction of all these topics also, little introduction. चैप्टर के शुरुआत में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, बट इन डिटेल अप टू द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड 9 कम टू दिस स्लाइड. We will know what is cytoplasm. We have already studied cell membrane, that cell membrane is the boundary of a cell. It limits the area of the cell. Then what is cytoplasm? The area which is bounded by the cell membrane is called cytoplasm. सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जितना भी एरिया घेरा हुआ है सेल में, सेल के अंदर, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे. जैसे एक रूम है, रूम की बाउंड्री हुई, या मानो एक फील्ड है, स्कूल का जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड की पूरी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस है उस पूरे स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे. और छोटे छोटे अलग जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो मानो सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, और पूरा स्कूल विथ बाउंड्री इज कॉल्ड सेल. हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं. बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस है उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म, और फिर इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं. एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो बाउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन. ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी अपने अपने मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड हैं. जैसे एक बड़ी घर के बाहर एक बड़ी सी बाउंड्री हो गई, फिर छोटे छोटे बिल्डिंग्स हो गए, हर बिल्डिंग हर रूम की अपनी एक बाउंड्री है. तो उसी तरह ये पूरी जो बड़ी सी बाउंड्री रहेगी उसके अंदर के स्पेस को हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म. रीड द लाइन्स. The region enclosed by cell membrane. This is fluid content inside the plasma membrane. Fluid, or you may call semi-fluid. It is not totally fluid like it will flow as water. पानी की तरह यह बहता नहीं है. It is semi-fluid. It contains many cell organelles. Chemically, it is made up of water, lipid, protein, carbohydrate, and many others. Cell vesicles and many other structures also. Okay, then what is the final definition of the cytoplasm? You read the membrane bounded area, the area which is bounded by the membrane, it is called cytoplasm. Now next one is, here is the diagram. You can draw it clearly. It is easy one, so I put it here. Plasma membrane, it is boundary, and inner side structure, all the ground tissue is called ground space, is called cytoplasm. And these spotted like structures are the various cellular structures and chemicals compounds that are found. Middle large round structure is nucleus. There is mitochondria also. So all these organelles are found in the semi-fluid ground structure, that is cytoplasm. You have to draw this structure in your
copy also. Now come to the point. Next topic is cell organelles. What are cell organelles? I have already discussed. सेल ऑर्गेनल्स क्या है हमने पहले भी डिस्कशन किया है. सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं ताकि वो एक सिंगल सेल भी एक लाइफ है. जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक ही सिंगल सेल से है लेकिन वो लाइफ लिविंग है. तो अगर लिविंग है तो एक सिंगल सेल को भी बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं. जैसे उनको ग्रोथ करना है, रिप्रोड्यूस करना है, रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी बनाना है. तो ये सब कौन करेगा आखिर सेल में? तो ये इन सभी कामों का बंटवारा आपस में किया गया है सेल ऑर्गेनल्स में. ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये छोटे बेसिक यूनिट्स ऑफ द सेल हैं जो कि सेल टोटल मिल के, सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल के सेल को पूरे फंक्शनल बनाते हैं. ओके. व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल. For example, mitochondria, Golgi body, vacuoles, lysosomes and many other membrane-bound organelles. These are found in the cytoplasm and we have read in the previous slide, nucleus, it was also an cell organelle. Okay. In the cell organelle, we will study and what are cell organelles? I have already told you these are not found in prokaryotic cell. Means membrane bound cell organelles are not found in prokaryotic cells. You will add this point. Membrane bound cell organelles are not found in prokaryotic cells. Second point is, first point में please add there that membrane bound organelles are not found in prokaryotic cell. Second is, these structures can be seen only in electron microscope. ये इनके क्लियर स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा. जैसे हम लोग स्कूल में जो प्रैक्टिकल करेंगे तो केवल सेल की बाउंड्री और स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस दिखेगा और ब्लैक और भी दूसरे ब्लैक पिंक स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं. लेकिन इनके क्लियर स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा. कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप से ये स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे. They support the functions of the cell in a various way. Nucleus is an important cell organelles. Now we will study some important cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, lysosomes, etc. I am again repeating that in the first point, please add that membrane bound cell organelles are not found in prokaryotic cells. Otherwise, like ribosomes, lysosomes are found in prokaryotic cells. But the membrane bound organelles like endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body are not found in prokaryotic cells. Now come to the next topic. Within cell organelles, what we have to study in our syllabus of class 9th, that are endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. These all cell organelles we have to study one by one. In this slide, I am going to teach you only endoplasmic reticulum. When you see the cell, और अभी तक जितना भी आप सेल का स्ट्रक्चर देखते होंगे तो यू हैव सीन न्यूक्लियस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, नेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दैट स्ट्रक्चर इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के आसपास ही पाया जाता है और न्यूक्लियर पोर से ज्वाइंट रहता है. ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसमें डीएनए रहते हैं और डीएनए हमारे केमिकल सिंथेसिस को गाइड करता है. तो जो डीएनए गाइड करने के लिए जो मैसेज देगा वो इसी न्यूक्लियर पोर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हुए जो भी मैसेजेस भाया केमिकल्स आएंगे वो इसी के द्वारा
न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आएगा या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म, डू यू रिमेंबर द plasm that is found within the nuclear membrane. Here you can see the structure. It is handmade nucleus and the continuous tube-like structure, that is endoplasmic reticulum. Small rounded structure on tube-like endoplasmic reticulum are ribosomes. राइबोसोम्स के प्रेजेंस होने के कारण जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ दिखता है, खुरदुरा दिखेगा माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड जिस टिब्यूल्स और जिस पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये छोटे छोटे राइबोसोम्स नहीं रहेंगे उनको कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेफिनेशन है लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। नाउ सी हियर, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, देन विल इट बी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? What will be your answer? No. This cell organelle will be not found in prokaryote because it is membrane bounded, double membrane bounded organelle. It is bound by tubules and vesicles. Vesicles are round structure. Round structure is known as vesicles in biological term. Vesicles means round drop like structure, and tubules. Tubules are elongated tube like structure. Now come to the structure. It consists of double membranous long tubules. I have already told you. इसका मैंने छोटा सा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर भी बनाया है, और राउंड वेसिकल्स। वेसिकल्स इसमें कैसे बनते हैं? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करना पड़ता है, तो जब ये ट्यूब्यूल में अपने प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है तो वेसिकल्स के रूप में ये केमिकल सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर, और फिर वो जहाँ उनका डिमांड रहता है वहाँ वो जाके अपना फंक्शन करते हैं। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस चैनल विद द न्यूक्लियर पोर endoplasmic reticulum. Now I am here denoting you the endoplasmic reticulum. So in the third point it is written, and the rounded structure is the nucleus. Or now come to the types. On the basis of ribosomes present on its tubules, the endoplasmic reticulum is of two type. I have already told you. Rough endoplasmic reticulum. अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और ऐसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे एक्टिवली जो हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें राइबोसोम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर द रियल मैस मशीन टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। तो ये राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना के और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स में डाल देते हैं, और वो वेसिकल्स के रूप में फिर बाहर निकलता है, और जहाँ उसकी डिमांड रहती है मेम्ब्रेन सिंथेसिस में या हार्मोन सिंथेसिस में या एंजाइम्स के सिंथेसिस में, वहाँ वो अपना ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसका। नाउ द सेकेंड वन इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SER। क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है और राइबोसोम्स आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सो SER विल नॉट डू द प्रोटीन सिंथेसिस। SER प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, और वो लिपिड, इट सिंथेसाइजेस द लिपिड। ये क्या सिंथेसिस करेगा? लिपिड को। सो हम लोग कंक्लूड करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली केमिकल सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, और ये लिपिड और प्रोटीन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब सेल डिवाइड करता है, सेल को डिवाइड करना है और डॉटर सेल भी बनाना है,
उसके बाद कोई कोई सेल सीनेसेंस हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो रिपेयरिंग भी करनी रहती है, उसमें नए प्रोटीन और लिपिड की ज़रूरत है। तो इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो सिंथेसिस लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं। बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, न्यू बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस करते हैं। Here the important question for your exam is differentiate between SER and RER. SER और RER का डिफ्रेंशिएशन करना है और उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। Now come to the functions of endoplasmic reticulum. I am already discussing their function, लेकिन यहाँ कंक्लूड कर देते हैं, एक जगह लिख देते हैं फंक्शंस को। Their channels like structure form a framework for the cell and helps in transportation. मैंने पहले भी कहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक, फिर साइटोप्लाज्म से जिस सब्सटेंस को अंदर जाना है न्यूक्लियोप्लाज्म तक, ये चैनल इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जाते हैं। इन सभी को आप और डिटेल में हायर क्लासेस में प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस वगैरह में पढ़िएगा कि कैसे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। They are actively busy in synthesizing biochemical substance like lipids, proteins, enzymes, hormones, क्योंकि enzymes and hormones जो हैं वो प्रोटीन और लिपिड के बने हुए हैं। They help in detoxification of many harmful chemicals in the liver cells of vertebrates. और ये हम लोग वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे कि उनके लीवर सेल में ये जो SER हैं, स्पेशली SER, वो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये हमारे लीवर सेल के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा लीवर जो है वो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड और वहाँ के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो पॉइजनस या किसी हार्मफुल सब्सटेंस को आपने अगर अपने फूड के साथ ले लिया तो वहाँ पे वो हार्मफुल सब्सटेंस डिटॉक्सिफाई होता है, मतलब उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर में, लीवर के सेल में, और किसके द्वारा? इस SER के द्वारा। नाउ हमने बार बार राइबोसोम्स बोला, तो व्हाट आर दीज राइबोसोम्स? सेलुलर स्ट्रक्चर है ये, दैट सिंथेसिस प्रोटीन प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है, और इट इज़ नॉट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट में भी रहता है। हालांकि सेल ऑर्गेनल्स है बट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है, और इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी रहता है, राइबोसोम्स। but there is difference in the structure of prokaryotic ribosome and eukaryotic ribosomes. This again you will study in your next classes. Now come to the conclusion that what we have read today. The cytoplasm, that is the ground space, whole space bounded by the cell membrane. Then we read the definition of cell organelle, means what are cell organelles and examples of cell organelles, which type of cell organelles are found in prokaryotes and eukaryotes, and one example of cell membrane, that is endoplasmic reticulum, we have studied today. We will conclude the chapter in the next slide also by giving you the next cell organelles example.